Now, after understanding the concept of series and parallel, means what series and parallel circuits are actually, now we are at the verge of discussion part for the equivalent resistance calculation for series and parallel circuit. So let us do one by one series and parallel. First of all, I am going to discuss series circuit. So this is the circuit that we have discussed, and moreover we have discussed that current remains same in series and potential gets divided so as to maintain Ohm's law. So only one ammeter I have placed here and 3 voltmeters are placed. If you see in your books, you can also see that even 1 voltmeter can also be applied, but that will give the complete value. Like I'll show you in your book itself. This is figure 12.6. Here only 1 voltmeter is shown that will give the complete value of voltage or potential difference across all the three resistors. But if you want to calculate how much potential has divided in series circuit, then we have to apply individual voltmeters across each and every resistance. So let us come to the next discussion and theory part. So you may get a question in paper like find out the equivalent resistance in series कि total resistance series में क्या होगा या फिर what will be the value of net resistance when you connect a number of resistors in series. तो इस तरह से question आता है. तो for question whenever you are going to do some derivation sort of questions like you have done in your 9th standard for equation of motion and this conservation of momentum law, calculation of energy, kinetic energy and potential energy formula, whatever mathematical interpretation you do, you have to start with theory. Means you have to introduce what you are going to do, what you are actually doing. So in theory you have to write, we have made a circuit as shown in the figure. 3 resistors each of value R1, R2 and R3 are taken. Total potential V is applied across the circuit, and corresponding to that potential current flowing is A. The total current remains same in the series, and to calculate that current only one ammeter is connected, whereas potential gets divided as V1, V2, V3. That is why 3 voltmeters are connected. This is the simple thing that I have explained through the circuit, whatever I can see from the circuit. Rest you can write it your way also, you can modify the theory also, so that you can easily explain the circuit by theory. थ्योरी की हेल्प से आपने सर्किट को एक्सप्लेन करना है कि आप क्या एज्यूम कर रहे हो, क्या ले रहे हो. नाउ कम टू द स्टेप्स और डेरिवेशन पार्ट. So this is the first step. Since this potential is divided into 3 different potentials, so total potential is actually the sum of all three potentials. जितना भी potential आपने दिया है वो potential इन 3 में बट गया, उन्हीं तीनों का sum ये total potential रहेगा. करंट सेम है और वही करंट टोटल है. जितना करंट यहाँ से जा रहा है अगर मैं इसको टोटल करंट मानती हूँ तो यहाँ पे भी वही आई टोटल करंट है, यहाँ पे भी आई टोटल वही है, यहाँ पर भी आई टोटल वही सेम करंट है. तो अगर मैं पूरे सर्किट के ऊपर ओम्स लॉ लगाऊं, अभी डिवाइडेड नहीं देख रही मैं रेजिस्टेंसेस को, अगर पूरे सर्किट के ऊपर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो टोटल पोटेंशियल जो यहाँ से सप्लाई हो रहा है, जो अभी डिवाइड नहीं हुआ, दैट टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट. Current is same either you say it as total or you write it simply as I, and into I R total. R total, that we have to calculate what is the net resistance obtained from these 3 resistances. So this is how we have written Ohm's law for complete circuit. Now this R total is represented by RS. RS is resistance in series. क्योंकि हम series में net resistance calculate कर रहे हैं तो RS जो R total है एक्चुअली वही आपका RS है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं RS से. आप R total लिखो या RS लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट रेजिस्टेंस अगर आप सीरीज़ में कर रहे हो तो ये क्लैरिटी ज़्यादा शो करता है. R total पैरेलल में भी हो सकता है पर यहाँ सीरीज़ के लिए हम RS शो करेंगे, ये ज़्यादा बेटर तरीका है. नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ इंडिविजुअली. अब हमने ये देखना है कि टोटल तो ये है पर इंडिविजुअली पोटेंशियल की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं. तो V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1, V2 equals to I into R2 because I remains same, V3 equals to I into R3. So here you can see I have written all the values for V1, V2 and V3. Since these voltages are divided, since these potentials are divided so as to form V, so what we have to do, we have to sum up the values of all these individual potentials so as to get the total value of potential. इन तीनों पोटेंशियल्स की वैल्यू V1, V2, V3 की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में और आपको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा.
तो सिंपली मैंने यहाँ पर V को तो मैंने V ही रखा, V1 V2 V3 की वैल्यूज़ मैंने सारी यहाँ पर पुट कर दी, IR1 IR2 और I3 मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पर ये IR की टर्म्स में है और ये V की टर्म्स में है, हमारा सीरीज़ टोटल अभी भी नहीं निकला। तो व्हाट वी हैव टू अप्लाई, यू हैव टू यूज़ सेकेंड इक्वेशन and equate this second and fourth equation, because this is V in terms of divided potential and this is V total potential for the circuit. ये भी total है पर divided forms में लिखा हुआ है आपने, और ये भी total है, तो दोनों total potentials को हम equate कर देते हैं and where we have reached, we have got IRS equals to IR1 plus I भी आएगा यहाँ पे IR3, IRS ये दोनों आपने इक्वेट कर दी, तो IRS equals to IR1 plus IR2 plus IR3. Take out I as common, cancel it out, and we have got RS equals to R1 plus R2 plus R3. So in series, the total resistance offered by the circuit is sum of all individual resistances present in the circuit. So this is actually called as the law of equivalent resistances in सीरीज में ये स्टेटमेंट देते हैं हम. मोर ओवर दिस स्टेटमेंट यू कैन सी फ्रॉम पेज नंबर 212, and after this equation 12.14 we can conclude that when several resistors are joined in series, the resistance from here, when several resistors are joined in series, the resistance of the combination RS equals the sum of their individual resistances R1, R2 and R3 up till this. Next line you can read, and thus greater than any individual resistance. This I am coming to this point. Now before coming to that point that I have left in the statement, let us do some simple numerical so as to get the concept. So let us consider first concept R1, R2, R3. These are the three resistances with values 3, 6 and 9 ohms. We have to calculate total R. If they are connected in series, what will be the total resistance offered by the circuit? Simply you have to all the three resistances and you get the value 18 ohm. Simple आपने maths के according add कर दिया. अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि जो टोटल रेजिस्टेंस निकला है वो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू का जो रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा निकला है. तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ग्रेटर दैन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेज प्रोवाइडेड टू यू. जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस है. अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि मेरे पास 1, 10 to power 6, 10 to power 3, 10 to power 9 ओम्स के कुछ रेजिस्टेंसेज हैं, तो जज करो, सिंपली एस्टिमेट लगाओ कि व्हाट विल बी द नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. यू नीड नॉट टू कैलकुलेट बाय एडिंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू कैलकुलेट, क्योंकि पावर्स ऑड पावर्स हैं, अनइवन पावर हैं, मतलब सेम पावर्स नहीं है, तो ऐड करने में प्रॉब्लम आएगी. तो क्वेश्चन क्या है, सिंपली जज क्या होगा रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का. तो रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर दैन दिस 10 raised to power -9 वैल्यू. सिंपली एस्टिमेट करना है हमें कि सबसे बड़ी वैल्यू से भी क्या होगा, बड़ा होगा रेजिस्टेंस. तो ये आपका सिर्फ जजमेंट एस्टिमेशन आ गया यहाँ पर. Now see second question. This is actually your NCERT problem. One of the NCERT questions is this. Next, see second question. Let R1, R2, R3, R4 are given to you and each of value 2 ohms. Find the value of resistance in series. So simply you keep on adding the resistances and we have got the value RS equals to 8 ohms. This 8 ohm can also be written as the number of resistances. How many resistance do we have? 4. And what is the value of each resistance? 2. So simply you multiply the value of each resistor which is 2 and number of resistances. तो 4 से आपने 2 को मल्टीप्लाई किया तो सीधा तब भी आपको क्या मिल जाएगा, 8. ये सिंपल वही रिलेशन है कि अगर एक पेन 10 रुपीज़ का है तो 4 पेन्स कितने के कॉस्ट करेंगे, तो 4 into 10 यू सिंपली मल्टीप्लाई दैट. सिंपल यूनिटरी मेथड हो गया. बट दिस इज़ पॉसिबल when you get all the values of resistance to be same. but अगर different values हैं तो आपको add करना ही पड़ेगा यहाँ पर. अब इस फॉर्मूले को when you have all the resistances same and you have n number of resistances, there are many resistances each of same value, then simply instead of adding up the things you simply simplify the formula. ये shortcut formula है, simple n into r कर दो आप.
For example, let us see another problem. Suppose you are given 100 resistors, each of value 20 ohm. n कितना हो गया यहाँ पर 100, और हर रेजिस्टर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, R equals to 20 ohm. They are connected in series. Find the equivalent resistance. Now make one thing clear in your mind that all these resistances are connected in series. So whatever equivalent resistance you will get, that will be higher as compared to 20, क्योंकि सीरीज में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बड़ा आ रहा है, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन फैक्ट. तो रेजिस्टेंस बढ़ता है सीरीज में, ज़्यादा हो जाता है. तो यहाँ पर हम 100 रेजिस्टेंस को ऐड नहीं करने लगेंगे. सिंपली वी यूज़ दिस शॉर्टकट फार्मूला और आप इसको ऐड करके यहाँ पहुँच गए. आर एस इक्वल्स टू एन इन टू आर. ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी बहुत यूज़ होता है ट्रिकी प्रॉब्लम्स के लिए. N was 100, R was 20, and you have got 2000 ohms value of resistance. तो resistance increases in series. Obviously जब resistance बढ़ेगा तो current circuit में क्या flow करेगा, कम करेगा. So this was all about resistances in series. Now let us start with resistance in parallel. This is activity 12.6, figure 12.10 in your book. This is the typical parallel circuit. I have used 3 ammeters. Why 3 ammeters are used? Because current divides. And when current divides, so as to maintain potential difference, so as to maintain Ohm's law constant, potential difference remains same. You can easily remember this by this method. P for parallel. In this way I keep on telling my students since last batches. P for parallel and P for potential. So in parallel potential remains same. Look, P for parallel, P for potential. Parallel में potential same रहता है. जब parallel में potential same है तो series में potential divide हो चुका होगा. तो series में दूसरी चीज़ same रहेगी. दूसरी चीज़ क्या है, current है. So this is how you can remember. Now let us start with the calculation mathematical part. Theory. As such, what we have done in series circuit, you have to explain likewise कि 3 resistance we have taken and this is the potential applied by the circuit through the battery sources and current is I. This current when reaches this node, suppose node का नाम हमने x दे दिया, point हमने x दे दिया and this is point y. तो after reaching the node the current has 3 paths to move. तो 3 पाथ्स में करंट जो है वो आपका डिवाइड हो गया, I1, I2, I3, एंड ऑन रीचिंग दिस नोड Y इट अगेन कलेक्ट्स बैक इट सेल्फ, कलेक्टेड बैक एंड अगेन गेट I. तो वापस I उसी सर्किट में वापस फ्लो कर जाएगा. एमीटर यहाँ टोटल हमने 1 लगाया है पूरे करंट को मेजर करने के लिए, रेस्ट यहाँ पर आप इंडिविजुअली लगा रहे हो. इसको स्किप भी कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. और पूरा पोटेंशियल मेजर करने के लिए 1 वोल्ट मीटर इज़ रिक्वायर्ड. दैट्स इट. नो नीड ऑफ separate voltmeters because potential is same. Now in parallel you must have learned now कि current is dividing. In this parallel circuit is completely opposite to that of series. I keep on comparing the things between series and parallel side by side. In series potential was divided, V1 plus V2 plus V3. Now दिस इज सेम. इन सीरीज करंट वॉज सेम. सो आई टोटल जो भी चीज़ डिवाइड हो रही है उसका एक्सप्रेशन हम निकालेंगे. यहाँ पर हमने लिखा था V1 V2 की V3 की वैल्यूज़ निकाली थी IR1 IR2 I3. यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है तो हम करंट्स की वैल्यू निकालेंगे. तो करंट की वैल्यू क्या है, I1 I2 I3 ये हमने निकाल लिया, सब ये सब वैल्यूज़ निकाल ली. अब इसको इन तीनों वैल्यूज़ को जो करंट डिवाइडेड था हमारे पास उसमें हमें पुट करना पड़ेगा. बट ये टोटल आई भी क्या है हमारे पास, टोटल आई इज़ टोटल पोटेंशियल, दिस टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर टोटल. आर टोटल इज़ एक्चुअली व्हाट, आर पैरेलल. जितना ये तीनों रेजिस्टेंसेस ऑफर करेंगे रेजिस्टेंस सर्किट में, दैट इज़ एक्चुअली आर टोटल. एंड फॉर कन्वीनियंस to make it look separate from resistance in series, it has to be written like R parallel. I think now you have understood कि why we are not using R total, because R total series में भी है, R total parallel में भी है, distinguish नहीं कर पाओगे आप. So to distinguish, R parallel and R series are often marked. So what we have, I equals to V by R parallel. This is total current and this total current is divided like this. So these two values of currents,
this sum, this totality of currents and this total current has to be equated. तो यहाँ ये जो इक्वेशन थी हमारे पास I इक्वल्स टू I1 I2 I3, इसमें हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इंडिविजुअल सम्स जो है हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे. तो अभी मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को रोक दिया है, सिर्फ मैंने राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ पुट करी हैं और ये वैल्यूज़ आ गई. अब मैं इस इक्वेशन से इस I को भी चेंज कर दूंगी V/R पैरेलल, और ये हमने कर दिया. जितने स्टेप्स आपको ईजियर करने हैं आप उतने ईजियर कर सकते हो. मैं स्टेप बढ़ाती जा रही हूँ समझाने के लिए, आप वहीं पे चीज़ों को सॉल्व कर दो. जैसे यहाँ पे मैंने एक अलग स्टेप में ले लिया, आप उसको वहीं पे ले लो, यहीं पे सीधा V/R पैरेलल पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ मैंने समझाने के लिए लिखा है R टोटल और ये सब, आप शुरू में ही लिख दो I इक्वल्स टू V/R. ये स्टेप की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इसी स्टेप को डायरेक्ट लिख दो तो स्टेप्स कम होते जाएंगे. तो V/R पैरेलल ये आ गया आपका, और 1/R पैरेलल इक्वल्स टू रेसिप्रोकल आ गया. तो इन पैरेलल व्हाट यू ऑब्जर्व, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू द सम ऑफ किसके, डायरेक्ट रेजिस्टेंसेस के नहीं, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. सो दिस इज the law of resistances in parallel. Now you can see the statement from book. It's on page number 214 after this equation 12.18. Right from this you can see the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistances, combination of resistances कुछ भी use करो, joined in parallel is equal to the sum of reciprocals of individual resistances. तो ये आपका derivation part over हो गया. Next is numericals based on parallel combination. Suppose again वही 3 values मैंने choose कर ली 3, 6 और 9 ताकि मुझे comparison मिल जाए. यहाँ मैंने क्या किया था, सीरीज़ में मेरे पास वैल्यू आई थी 18 ओम्स, 6 और 3 9 और 9 18. अब पैरेलल में देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ आती हैं. तो इन पैरेलल वी हैव गॉट द वैल्यू R पैरेलल इक्वल्स टू 1.6. आफ्टर टेकिंग LCM, इस पूरे का जब मैंने LCM लिया तो मुझे क्या मिला, R इक्वल्स टू 18/11. यहाँ 11/18 जो था दैट वॉज रेसिप्रोकल ऑफ R पैरेलल. यू हैव टू इन्वर्ट दिस, कीप दिस थिंग इन माइंड कि इसको आपने इन्वर्ट करना है. तो इन्वर्ट करने के बाद आपको वैल्यू 1.6 मिली, एंड यू कैन ईजिली सी दैट द मिनिमम वैल्यू वॉज 3 एंड दिस टोटल रेजिस्टेंस इज क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू द लीस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस दैट वी वर प्रोवाइडेड. सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटी वैल्यू आई थी, जबकि सीरीज़ में क्या था, सीरीज़ में सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ी वैल्यू आई थी आपके रेजिस्टेंस की. सो दैट मीन्स रेजिस्टेंस कम हो जाता है. जो वहाँ पर 18 ओम्स था सीरीज़ में, वही यहाँ पर कितना 1.6 हो गया. बड़ी से भी बड़ी थी और यहाँ छोटी से भी छोटी थी. मैं ये चीज़ें रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन में चीज़ें यूज़ होती हैं. तो R डिक्रीजेज इन पैरेलल, ऑब्वियसली करंट इज़ मोर इन पैरेलल. तो अगर आपको करंट बढ़ाना है तो वी चूज़ पैरेलल सर्किट, और करंट अगर कम करना है तो वी यूज़ सीरीज सर्किट. नेक्स्ट कम टू न्यूमेरिकल. सेकेंड क्वेश्चन, लेट अस टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंसेज 5 and 10 ओम्स. अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके मैंने यूज़ करे हैं, एक शॉर्टकट है और पूरा एक लॉन्ग मेथड है. सिंपली आप जो LCM मेथड करते हो, 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 मैंने लिखा, सीधा मैंने रेसिप्रोकल ले लिया. तो 1/R पैरेलल क्या आपका LCM वगैरह सॉल्व करके आपका आ गया 3/10. 3/10, रिमेंबर दिस कि दिस इज़ 1/R पैरेलल. आई कीप ऑन रिपीटिंग दीज थिंग्स बिकॉज स्टूडेंट्स जनरली 80% students commit this kind of mistakes even in boards, and the marks get deducted due to these kind of silly problems. So do not do that. Keep remembering these things that I am repeating again and again. मैं ऐसे ही रिपीट नहीं कर रही हूँ टाइम पास करने के लिए, मुझे ये बतानी है ज़ोर लगा के, इसलिए मैं वही चीज़ें रिपीट करती हूँ बार बार. तो R पैरेलल इक्वल्स टू 10/3, ये आपकी वैल्यू आ गई. अब एक और तरीका क्या है कि हम LCM ना लें. जनरली स्टूडेंट्स LCM निकालने में भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कई बार. ये सिंपल वैल्यूज़ थी तो इजीली सॉल्व हो गया, बट समटाइम्स ऑड वैल्यूज़ आर गिवन टू यू, डिफरेंट वैल्यूज़ आर गिवन टू यू, नॉट वेरी सिंपल काइंड ऑफ वैल्यूज़. इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस शॉर्टकट मेथड. तो R पैरेलल अगर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है, 2 resistances are given to you, this is possible only for 2 resistances cases, not more than 2.
क्योंकि फिर उसके बाद वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फॉर्मूला। तो आर पैरेलल के लिए आप सिंपली यूज़ करो R1 R2 प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेजिस्टेंसेज। ये मैंने फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से निकाला है, आप देख सकते हो यहाँ पर। सिंपली मैंने रेजिस्टेंस का एलसीएम ले लिया, वैल्यूज़ के बिना ही R1 R2 प्रोडक्ट ले लिया मैंने और ये एलसीएम किया और 1/R पैरेलल था, उसको इन्वर्ट करके मेरे पास यही चीज़ आ गई। तो इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो और ट्राई कर लेना आप 1 और 3 ओम वैल्यू है रेजिस्टेंस की, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। तो जब आप इस डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व करते हो तब भी आपने वैल्यूज़ पुट करी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो भी हमारे पास क्या आया 10/3 और एलसीएम मेथड से भी क्या था 10/3। तो जब भी दो रेजिस्टेंसेस गिवन हो आप दोनों में से कोई भी चूज़ करो। नेक्स्ट इज़ जैसे सीरीज़ में था कि सीरीज़ में आपके पास कुछ 5-6 रेजिस्टेंसेस थे जिनकी सबकी वैल्यू सेम थी। तो सीरीज़ में हम यूज़ करते थे कि नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस इनटू जो हर वैल्यू का रेजिस्टेंस था उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब पैरेलल में देखते हैं कि पैरेलल में क्या होता है। सारे आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं, 6 रेजिस्टेंसेस आर प्रोवाइडेड टू यू विद वैल्यू 4 ohms। सो यू हैव टू कैलकुलेट आर पैरेलल। सिंपली मैंने पुट करा सारा कुछ, एलसीएम मैंने सॉल्व करा और मेरे पास ये आ गया 6/4। ये 1/R पैरेलल था, R पैरेलल क्या हो गया 4/6। इफ़ यू क्लोजली एनालाइज दिस देन 6 इज़ द टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज प्रोवाइडेड टू अस, n is the number of resistances given to us and 4 is the value of each resistor. तो R parallel can be generalized in this form, R parallel equals to R by N। तो यह हो गया आपका R by N। तो सीरीज़ में जो आपका N इंटू R प्रोडक्ट था, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें तभी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और यहाँ पर हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तभी R पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये और ये आपको क्रैम करके रखने हैं अच्छे से, कंप्लीट टू योर मेमोरी, कीप इट योर सेल्फ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। If 4 resistors each of value 176 ohm, number given to you is 4 and value of each resistor given to you is 176 ohms, then find the equivalent resistance। R parallel क्या होगा। अब यहाँ पर 4 रेजिस्टेंसेज हैं, आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1/76 प्लस 1/76 प्लस 1/76 प्लस 1/76 करते रहोगे आप, और अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, शॉर्टकट मेथड यूज़ करो R by N। तो R by N यूज़ करा आपने तो सिंपली क्या आ गया आपके पास, R की वैल्यू है 176, N का नंबर है 4, 176/4 इक्वल्स टू 44 ओम। अब मैं ओरली 2-3 क्वेश्चंस बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल 10 ओम की वैल्यू के आपके पास 2 रेजिस्टेंसेज हैं। फाइंड इन सीरीज़ व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यू हैव। इन सीरीज़ सिंपली यू ऐड, डबल कर दोगे 20 ओम हो गया। पैरेलल में क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि आप 1/10 प्लस 1/10 करोगे तो आधा हो जाएगा। अगर 3 होंगे तो 10/3, 4 हो गया तो 10/4 एंड सो ऑन। अगर 20 ओम्स के हैं सीरीज़ में क्या हो गया डबल, और पैरेलल में क्या हो गया हाफ। तो सीरीज़ में अगर 2 ही रेजिस्टेंस सेम वैल्यू की हैं तो आप डबल कर दो, और पैरेलल में अगर करना है आपको निकालना है तो आप 2 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को हाफ कर दो। तो ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं जिनकी प्रैक्टिस आप एग्जाम्पल्स में से, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में से भी करो।